ایران کی طرف سے امن مذاکرات کے لیے نئی تجاویز پیش کر دی گئی۔ ایران کی طرف سے امریکہ کو جوہری مذاکرات کے بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی تجاویز پیش کی گئی۔ ایران کی نئی تجاویز میں آبنائے ہرمز کھولنے اور جنگ کے خاتمے کی پیشکش شامل۔ ذرائع کے مطابق ایرانی قیادت میں جوہری پروگرام پر رعایت دینے سے متعلق اختلافات موجود ہیں۔ ایرانی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے ایرانی تجاویز موصول ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ آج صورتحال پر سچویشن روم میں اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 24 گھنٹے میں دوسری بار فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ عباس عراقچی مسقط سے اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس دوران پاکستانی سیاسی و عسکری حکام سے اہم ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امن کے لیے ایرانی شرائط پاکستان کو پیش کر دی۔ پاکستان کے مختصر دورے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ اسلام آباد سے روس کے شمال مغربی شہر سینٹ پیٹرزبرگ پہنچ گئے۔ ایران کے سفیر کاظم جلالی اور بعض روسی حکام نے ان کا روس پہنچنے پر استقبال کیا۔ عراقچی پرواز مناب 168 کے ذریعے روس پہنچے ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایران متحرک رابطوں میں تیزی آ گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قطر کے وزیر اعظم، سعودی عرب، فرانس اور مصر کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق عباس عراقچی نے اسلام آباد پہنچنے سے قبل قطری وزیر اعظم، سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، فرانس کے یان نوئل باروٹ اور مصر کے بدر عبدالعاطی کے ساتھ سفارتی کوششوں پر بات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے قطری ہم منصب کو مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب کو خطے کی موجودہ صورتحال اور امریکہ سے مذاکرات کے حوالے آگاہ کیا اور اہم گفتگو کی۔ Well, I called them back, our people. The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. Great respect for Pakistan, but I will, because they've been terrific. They've really. امریکی صدر کا پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرانے کا پھر ذکر۔ کہا، پاکستان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پاکستان بھارت جنگ کے دوران 11 جہاز گرائے گئے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بہت اچھے اور قابل احترام ہیں۔ میں نے 8 جنگیں روکی جن میں پاکستان بھارت جنگ شامل ہے۔ پاکستان بھارت جنگ جوہری جنگ کی طرف جا رہی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا، میں نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ چین سے زیادہ مایوس نہیں ہوں، تاہم وہ مزید مدد کر سکتا ہے۔ ایران کا افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور ہم فاتح ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی میڈیا سے گفتگو۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں فون کر سکتا ہے، ہم یہ کام فون کے ذریعے کریں گے۔ ایران میں جن لوگوں سے ہم نمٹ رہے ہیں ان میں کچھ مناسب ہیں اور کچھ نہیں۔ امید ہے کہ ایران دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کے معاملے میں نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس امریکہ آ رہے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو برطانیہ نے کہا وہ جہاز بھیجے گا، یہ اچھا نہیں۔ امریکی صدر نے حملہ آور کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ کہا، مبینہ حملہ آور کے دل میں کافی عرصے سے شدید نفرت موجود تھی۔ اس کے گھر والے جانتے تھے کہ اسے مشکلات درپیش تھیں۔ وائٹ ہاؤس کی تقریب میں فائرنگ، حملہ آور کو فوری طور پر روکا گیا۔ حملہ آور بال روم میں داخل ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا۔ وائٹ ہاؤس کی تقریب کی جگہ کو محفوظ بنانا مشکل تھا۔ اب سب کو اندازہ ہو گیا کہ نیا وائٹ ہاؤس بال روم کیوں ضروری ہے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر میں فائرنگ کے واقعے پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دنیا بھر کے رہنماؤں کا تشویش کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کے محفوظ ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا کہ پریس ڈنر پر فائرنگ گھرونا دہشت گردانہ عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے لکھا کہ یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر شرکاء خیریت سے ہیں اور میں ان کی مسلسل سلامتی اور خیریت کی دعا کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی وائٹ ہاؤس عشائیے پر حملے کی مذمت کی۔ کہا، ہم ہر قسم کے تشدد کی سخت مذمت کرتے ہیں کیونکہ یہ سفارتکاری کا دشمن ہے۔ جبکہ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی اور آسٹریلوی وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ پر حملے کی مذمت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کرنے والے ملزم کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ حملہ آور کی 31 سالہ کول ٹامس ایلن کے نام سے شناخت، تعلق کیلیفورنیا سے ہے۔ ایلن نے 2017 میں کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے گریجویشن مکمل کی۔ ملزم کیلٹیک یونیورسٹی کا گریجویٹ اور پیشے کے لحاظ سے استاد ہے۔ ملزم کو دسمبر 2024 میں ٹیچر آف دی منتھ بھی قرار دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ایلن زیر حراست ہے اور اسپتال میں داخل ہے، جبکہ ملزم کی ذہنی حالت سے متعلق تاحال کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی۔
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट का कहना है कि जो एक तफरीही शाम समझी जा रही थी उसे एक बीमार सहन वाले शख्स ने हाईजैक कर लिया, जिसने सदर को कत्ल करने और ट्रंप इंतजामिया के ज्यादा से ज्यादा आला अहदेदारों को मारने की कोशिश की। एक्स पर एक बयान में लीविट का कहना था वो सदर के साथ बैक स्टेज पर थी जब हमें सीक्रेट सर्विस की तरफ से फौरी तौर पर वहाँ से ले जाया गया। इनका कहना था सदर उस वक्त बिल्कुल बेखौफ थे। उनका कहना था इस सियासी तशद्दुद को खत्म करने की जरूरत है और हम सबको महफूज रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की तरफ से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ रजा अमीरी ने कहा कि ईरानी वफ्द का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मुअस्सर मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतजामात में हुआ। कहा पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। इन्होंने पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और सरकारी इदारों के अमले का खसूसी शुक्रिया अदा किया और इस्लामाबाद की आवाम की मेहमान नवाजी, सब्र और ताउन को खिराज तहसीन पेश किया। रजा अमीरी मुकद्दम ने पाकिस्तान को बरादर, दोस्त और हमसाया मुल्क करार देते हुए ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़्म का इजहार भी किया। हुकूमत ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 नाफिज कर दिया, जिसके तहत पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक सामान की तरसील की इजाजत दे दी गई। ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 के नोटिफिकेशन के मुताबिक गवादर, कराची और ताफ्तान के नए ट्रांजिट रूट्स के लिए मुख्तस करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। वज़ारत तिजारत के मुताबिक तीसरे मुल्क से ईरान जाने वाला सामान पाकिस्तान से गुजर सकेगा। गवादर बंदरगाह को भी तिजारती मकासद के लिए हैसियत दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रांजिट कार्गो के लिए माली गारंटी लाजमी करार दे दी गई। FBR कवानीन के तहत कस्टम्स तरीक़ाकार लागू होगा। मशरिक़ वुस्ता में गैर यकीनी के मनफी असरात के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $107 फी बैरल तक जा पहुंची, जबकि WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। इससे पहले भी अमेरिका और ईरान के दरमियान आबनाए होर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। इस्लामाबाद में रेड जोन के तरफ ट्रैफिक पाबंदियां खत्म। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा अवाम का सब्र और ताउन करने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम की हिमायत हमें मेहमानों की हिफाजत और अमन की कोशिशें आगे बढ़ाने के लिए काबिल बनाती है। हम इन मकासद के लिए पुरअज़म अवाम की मुसलसल दुआओं और नेक तमन्नाओं के तलबगार हैं। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने चांगशा में हनानटी ग्रुप कंपनी लिमिटेड का दौरा किया। चांगशा की नायब मेयर चियान लेक्सा भी मौजूद थी। हनानटी ग्रुप के चेयरमैन ने ऑपरेशन, सप्लाई चेन और बैनुल-अक़वामी मार्केट के रसाई के बारे में ब्रीफिंग दी। चाय की काश्त, प्रोसेसिंग, तहकीक और मार्केटिंग के बारे में भी आगाह किया गया। बताया गया कि साल 2024 की ऑपरेटिंग आमदन $11.27 अरब रही। मसनूआत की तकसीम, जिद्दत और तहकीक और तरक्की की सलाहियत में मुसलसल सरमायाकारी हुई। सदर मुमलिकत ने कंपनी की तारीख पर मबनी गैलरी का भी दौरा किया। चाय की प्रोसेसिंग और इसकी सकाफत पर प्रेजेंटेशन का मुशाहिदा किया। हनानटी ग्रुप कंपनी लिमिटेड की जानिब से सदर मुमलिकत के लिए चाय की निशस्त का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन, टेक्नोलॉजी मुंतकली, सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा भी लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वैल्यू एडिशन, एग्रो प्रोसेसिंग, बरामदात के फरोग के शोबों में ताउन के इम्कानात को सराहा। सदर मुमलिकत की जानिब से ग्रुप को मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ इश्तराक के मौके तलाश करने की दावत भी दी गई। उन्होंने सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकतदारी पर भी जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सूबा हुन्नान के पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर की मुलाकात। ज़राअत, सेहत, तालीम और तजारत के शोबों में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ू हैं। चीन के साथ ताल्लुकात नस्लों पर महीत हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा नफरत और तकसीम की सियासत का अंजाम पूरा होता है। मुल्क की तामीर और तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। सदर नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सूबे के अवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। तब्दीली के नाम पर आने वालों ने अवाम को कुछ नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बाकी वजीर मंसूबा बंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद किया। हर तरक्याती मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी हुई है।
भारत कभी दहशतगर्दी वाकयात पर अफसोस करता है न तशवीश। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है। पाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए कुर्बानी देता जा रहा है जबकि भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा BLA, TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार है। अता तारड़ ने कहा पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के तहकीकात के मुतालबे पर भारत बैकफुट पर चला गया। बैरूनी ममालिक ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। भारत की जानिब से तहकीकात की पेशकश पर जवाब न देना इसके मौक़िफ़ पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दे चुका है। दहशतगर्दी के बाइस पाकिस्तान को $600 अरब से ज़ायद का मुआशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया और इसे सराहा, जबकि भारत का बयानिया मुस्तरद हुआ। अता तारड़ ने कहा वज़ीर आज़म का काकूल में खिताब सफारती महाज पर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारत को बयानिया, सफारती और दीगर तमाम महाजों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा हमारा दिफा मजबूत से मजबूत तर हुआ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी अफवाज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की फिल्मी सनत को जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। कहा फिल्म सिटी मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। फिल्म, TV, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी, जबकि VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क निहसार कम किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि फिल्म सिटी मंसूबे में जदीद स्टूडियोज, साउंड स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी शामिल हैं। शूटिंग के लिए मुख्तलिफ तमाम सहूलियात, सेट्स और मरकजी झील भी बनाई जाएगी। वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। मोदी हुकूमत ने नाम निहाद पहलगाम वाक़े को अक़लियतों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। इनका कहना था भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद कोई नया रुझान नहीं। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश की। इनका कहना था कि भारत मसीही कम्युनिटी को क्रिसमस की खुशियाँ नहीं मनाने देता। भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद कोई नया रुझान नहीं। बोले मकबूजा कश्मीर में खातीन की इस्मत दरी की जा रही है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे निगरानी इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार कर दिया गया। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव मिसमार किया जा रहा है। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराजी पर तामीरात या कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। माली के वजीर दिफा खुदकुश ट्रक बम धमाके में हलाक हो गए। खुदकुश हमला दारकूमत बामाको के करीब उनकी रिहाइश गाह पर हुआ। सादेव कुमारा की हलाकत मुल्क भर में जहादी शिद्दत पसंदों और अलहदगी पसंदों की जानिब से किए गए मरबूत हमलों की एक लहर का हिस्सा है। सरकारी TV ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी, जिसमें कहा कि वजीर दिफा हमलावरों का मुकाबला करते हुए जख्मी हुए थे और बादजा जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे।